Good afternoon, everyone. So here, uh, not even college has said me कि you have to give some presentation to student, but yes, every year I target that 1 to 2 students should write their paper, research paper, or present. Mostly my focus is on to present. So last year, Yog Ratan also presented the paper. So he's also joined to our meeting. Yogadhan, at the end, you can also give your, your inputs to all the students. Uh, and what topic, how you have, selected the topic, and how, what was the experience when you presented your paper online. Okay, all the things. So now here, first of all, I am going to, this is my own actually, Sonali Inge. मुझे लगता है कि students should do some research paper, or do some research, and they have to present it इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड की मैंने ये रिसर्च किया है, ये मेरा रिसर्च है, एंड दे आर गोइंग टू राइट देयर नेम ओवर देयर, और उनका नाम जो है वो ऑनलाइन जब पेपर पब्लिश होता है तो मेनी इंटरनेशनल लेवल पे मेनी रिसर्चर्स विल रीड दैट पेपर, and whatever the inputs they are getting from that sorry output they are getting from that paper, they are putting in their research papers, and writing at the end in the reference, writing your research paper name with your name. सो इससे बड़ा मतलब क्या होगा कि हमारे लिए हमारा नाम इंटरनेशनल लेवल पे जा रहा है, या कोई मेरे पेपर को रिकमेंड कर रहा है. सो इसके लिए मुझे एवरी ईयर मैं 1 से 2 टारगेट करती थी, पर लास्ट ईयर मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट और मैंने बहुत सारा टारगेट लिया, एंड बीएससी से अलोन बीएससी से 14 स्टूडेंट्स है जिन्होंने रिसर्च पेपर एक्सवाई में, टीवाई के एक भी नहीं था, क्योंकि ऑनलाइन था और हमारा उतना रैपअप नहीं हुआ, बोल नहीं पाए उनसे, ट्यूनिंग नहीं हुआ इतना, तो इसकी वजह से टीवाई ने इतना नहीं किया कि लास्ट ईयर ओके ओके. बट जो अभी टीवाई में है और लास्ट ईयर वो एस वाई दैट टाइम 14 स्टूडेंट्स ने इंटरेस्ट दिखाया था, and interest somewhere it was like to get the what your क्राइटेरिया, मतलब आपके जो मार्क्स होते हैं वो आपको मिलना चाहिए. इसकी वजह से उन्होंने रिसर्च पेपर भी किया था, उनके लिए भी मैं एक सेशन लेने वाली हूँ, बिकॉज ओनली वाई फैकल्टी विल गेट साइटेशन, स्टूडेंट्स शुड गेट साइटेशन फॉर देयर रिसर्च पेपर, and how they are going to find out whether their paper is cited or not. So on that also I'm going to give one session for that. So before अभी आगे जाने से अच्छा है कि basic जो चीजें हैं that I'm going to tell you. So yes, 21 students from 21 students, 20 sorry 20. So most of the students are interested to do their research paper. So first of all, you have to know कि what is research paper, how to write it, और उसके लिए reading बहुत important है, and then you have to write it in your own words. Okay, so now research paper orientation, how you are going to select your topic. किसी के mind में topic already होगा, या फिर बस एक theme रहेगी, या फिर कुछ just concept रहेगा. So how you are going to choose your topic? Then choose a topic that you are interested in. Don't think कि उसने IoT पे लिया है, he is taking in artificial intelligence, and why should I go for other topic? I'll also go with it. No, don't think about that. If you're interested in some topic, pick that topic. And last time also I told you, it is compulsory, not given, that you are from computer science education, and then you must have to do your research in कंप्यूटर साइंस. नो, ये कहीं पे भी नहीं है. अगर आपका कंप्यूटर साइंस का, देखो हर एक हॉबी जो है वो एक चीज से नहीं होती, किसी को 2 या 3 अल्टरनेट अलग अलग हॉबीज हो सकती हैं, तो वो ऐसा नहीं बोलेगा मैं एक पे ही फोकस करूंगा बाकी 2 नहीं. नहीं, उसको जिसमें इंटरेस्ट है, जब जिस टाइम पे उसको उसमें इंटरेस्ट है, वो हॉबी कर सकता है. सेम लाइक यू,
Don't think कि I am in computer science and why should I select the topic for education or medical line or business line. No, you can. If you are having innovative idea, if you are thinking कि ये होना चाहिए research, तो आपका research बहुत लोग उसको यूज करेंगे. सो डोंट थिंक, पहले तो दिमाग से ये निकाल ही दो कि, एंड वो मन में टेंशन मत रखो कि मैं कंप्यूटर में हूँ. बहुत से स्टूडेंट शायद आज ज्वाइन नहीं हुए होंगे कि छोड़ो कंप्यूटर से रिलेटेड है, मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है या मुझे उसमें कुछ रिसर्च नहीं आता है, कोई सी प्रोग्रामिंग आता नहीं, इसके डर से ही कंप्यूटर छोड़ देता है. डोंट डू दैट. ओनली वो सी प्रोग्रामिंग ही अपना रिसर्च है ऐसा नहीं है. अलग अलग टॉपिक हो सकते हैं. द रिसर्च प्रोसेस इज मोर रिलेवेंट इफ यू केयर अबाउट योर टॉपिक. सो इट शुड बी रिलेवेंट भी होना चाहिए जिसके बारे में आपको नॉलेज है. आपको नॉलेज नहीं है, मतलब एकदम ब्लैंक है और आप बोलोगे रिसर्च करना है, वो भी 1 महीने में होना चाहिए, सो मैं बोलूंगी कि इट शुड नॉट बी पॉसिबल. यस, topic is there, but what to do that if you are not knowing? For that you have to read. इतना रीड करो उससे रिलेटेड, इतना रिसर्च करो, सर्च करो कि इससे रिलेटेड क्या है, यूट्यूब पे वीडियोस देखो, गूगल पे सर्च करो, बुक्स पढ़ो. ओके, सो now narrow your topic to something manageable. If your topic is too broad, you will find too much information and not able to be focused. अगर आपका थोड़ा सा है ना नैरो हो ना, तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा या क्लिक होगा कि ओके, related to this topic I have to do this. But if your topic is too broad, मतलब आप इसके बारे में बोलते ना, मराठी में भी है एक ना धड़ भारा बाजी, मतलब एक भी नहीं है, आपको लगता है मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, तो यू कैन फोकस ऑन वन. सो टॉपिक इसका इतना इतना रिलीवेंट होना चाहिए कि आपको एकदम समझ में आना चाहिए कि यस, मुझे पता चल गया कि इसमें मुझे क्या करना है. But if you are thinking about 2 to 3 different points, then you are not going to focus. So it should not be broad or vast category of topic, because too much information you are getting and then you are going to confuse कि अरे मुझे कौन सा लेना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, या फिर आपने टॉपिक कुछ अलग सिलेक्ट किया है और अंदर जो डिटेल्स लिख रहे हैं वो कुछ अलग ही मेंशन कर रहा है. इट शुड नॉट बी हैपन. ओके, next, background reading can help you choose and limit the scope of your topic. Yes, that what I say. दिमाग से ये भी मत निकालना कि भाई मुझे तो बस टॉपिक पता है, डिटेल नहीं पता है, छोड़ो छोड़ो मुझे नहीं करना है. नो, डोंट लीव इट. अगर टॉपिक है उसके बारे में 4 जगह ढूंढो, लाइब्रेरी में ढूंढो, आपका शोध गंगा है, मतलब गूगल पे आपको शोध गंगा करते हैं, शोध गंगा में जाइए तो आपको शोध गंगा से रिलेट, आई होप सो यू आर राइटिंग समवेयर बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आई एम गिविंग. शोध गंगा विल गिव यू मल्टीपल रिलेवेंट टॉपिक्स रिलेटेड टू योर टॉपिक. मतलब आपको एक सब थीम्स शोध गंगा कैन प्रोवाइड, एंड आपको उसके लिए रीड करना बहुत जरूरी है. सो रीड अदर्स रिसर्च. आप दूसरों के रिसर्च रीड करो उस टॉपिक से रिलेटेड, उन्होंने उसमें क्या लिखा है, उन्होंने क्या मेंशन किया है, उन्होंने उसमें क्या सर्च किया है, दैट्स व्हाई दे हैव रिटन दिस रिसर्च पेपर. So you have to, always or continuously you have to read the relevant material related to the topic. Talk about your research idea with your friend. If you are confused and you are thinking कि अरे मेरे साथ जो मेरा फ्रेंड है उसको तुरंत ये आइडिया समझ में आ जाता है, या मुझे मैं क्या सोच रहा हूँ ये शायद उसको जल्दी ग्रास्प हो जाता है, और he or she can help me in this particular point, तो आप आपका जो टॉपिक है आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो. ऐसा हो सकता है कि वो आपको और उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे. He or she may be able to help focus your topic by discussing issues that didn't occur to you at first. ऐसा बातें बातें करने में ऐसा हो कि आपको नहीं पता है, पर वो बोलते हुए बोला कि क्यों ना तुम इस पे करो, तो आपको आइडिया जाएगा. तो ऐसे बातें करने से भी आपको इश्यूज के पॉइंट समझ में आएंगे, या रिसर्च के लिए टॉपिक समझेगा, या सब थीम समझेगा, या क्या करना चाहिए आपको एक वे मिलेगा. So while you are selecting this topic, you have to think about it. Now think of the who, what, 5 why. You have to, मतलब W, you have to question yourself. Then why did you choose this topic? Okay, first कि आपने अगर topic लिया है तो आपने ये क्यों किया है? Because when you will ask this
5 types of question to yourself, ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा, आइडिया यू विल गेट कि आपको क्या करना है. So these why questions you have to ask yourself. Why did you choose the topic? What interest do you about it? Do you have an opinion about the issue involved? So by using this, you can ask questions. So आपने ये टॉपिक क्यों किया है? आपको कहीं पे ऐसा महसूस हुआ या रियलाइज हुआ कि अरे ऐसा होना चाहिए बट आजकल नहीं है, या इस पे काम होना चाहिए नहीं है? फॉर एग्जाम्पल ऐसे ही बोलते वक्त कि मैं मेरा अभी आपको बताती हूँ कि अभी मैंने मेरे बेटे से 5-10 मिनट पहले बातें की. उसने एक सर्टिफिकेट उसका ढूंढ के लाया. वो अपने बैग में उसके मेडल्स हैं, कुछ सर्टिफिकेट्स हैं, और वो ढूंढ रहा है और मुझे एक सर्टिफिकेट लेकर आया अभी 5 मिनट पहले. और उसने बोला कि मम्मा ये देखो मेरे सर्टिफिकेट पे क्या लिखा है. तो मैंने बोला क्या लिखा है? तो मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय. मतलब वाओ, कांग्रेट्स, बहुत बढ़िया है. तो मैंने उसको बोला कि बेटा ये 2 साल पुराना है, जब आप फिजिकली स्कूल जाते थे तो वहां पे जाते वक्त आप अच्छे से क्वेश्चन के आंसर देते थे. टीचर आपको बोलती थी कि दूसरों को भी आप बोलने के लिए वेट करो, आप खुद फर्स्ट आंसर मत दो. शायद इसके लिए आपको इंटेलिजेंट दिया है. और जब ऑनलाइन शुरू हो गया है तो आप वीडियो ज्यादा ऑन नहीं करते हो, या टीचर जब आपको क्वेश्चन सबको पूछती हैं तो अगर कोई आपसे पहले जवाब दे देता है तो आपको गुस्सा आता है, आप उसके आंसर्स नहीं देते हो. ओके, सो ये जो ऐसा पॉइंट होता है, तो मतलब मुझे कहीं ना कहीं डिफरेंस समझ में आ रहा है कि जब वो फिजिकली जा रहे थे तो वो बहुत कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे, और जब अभी ऑनलाइन है तो नहीं हो रहा है. तो मुझे इसका डिफरेंस ढूंढना है. तो समझ में आया, यहाँ पर मैं रिसर्च कर सकती हूँ कि पैंडेमिक में जो बच्चा फिजिकली स्कूल जा रहा था उसको बहुत अच्छा सर्टिफिकेट मिल रहा है जिसपे लिखा मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय, और वो बंदा अगर अभी ऑनलाइन अटेंड कर रहा है तो वो इतना शाय क्यों हो रहा है, क्या डिफरेंस है? मिल गया मुझे टॉपिक. तो मैंने ये क्यों सिलेक्ट किया? क्योंकि मुझे मेरे रिलेवेंट वर्ल्ड से पता चला कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ये इश्यूज हैं. ओके, उसको ओवरकम करने के लिए मैं कर सकती हूँ. तो ऐसा हो सकता है कि मुझे मैं एज अ मदर मैं अगर ये सोचती हूँ तो शायद उसके 30 स्टूडेंट्स है, 30 में से 12 या 10 स्टूडेंट्स तो होंगे कि जिनकी माएँ भी यही सोच रही होगी कि वो फिजिकली बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहा था, ऑनलाइन नहीं हो रहा है. आपके क्लास में भी, या फिर आप आप बहुत वेल मैच्योर्ड बच्चे हो तो आपको भी पता चला होगा कि फिजिकली और ऑनलाइन में कितना डिफरेंस है. ओके, तो ये टॉपिक है, ये इशू है. टॉपिक नहीं बोल सकती मैं, ये इशू है. उस इशू को मैं कैसे ओवरकम करूंगी? तो मैंने ये टॉपिक क्यों सिलेक्ट किया? क्योंकि मैं देख रही हूँ कि अगर उसको ऑनलाइन ऐसे 3-4 साल रहा तो वो कहीं ना कहीं पीछे पड़ सकता है. शायद वो जैसे एक्टिवली पार्टिसिपेट फिजिकली कर रहा था वैसे ऑनलाइन नहीं है, और 4 साल के बाद उसको वो टीचर या फ्रेंड्स इतने अच्छे से उनके ट्यून नहीं हो पाएगी, फिर वो वैसे ही पीछे दबके रह जाएगा, वो बात नहीं करेगा. इस इशू को ओवरकम करने के लिए मैं ये सिलेक्ट कर सकती हूँ. सो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल. नाउ नेक्स्ट, हु आर द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर्स ऑन दिस टॉपिक? तो जैसे मैंने ये टॉपिक आपको बताया कि ये बच्चे थे इसमें, तो मुझे ये कौन इंफॉर्मेशन देगा? तो ये मैं बाकी ऐसे माओ से इंटरेक्ट करूंगी. ठीक है, आपको भी ऐसे ही लगता है कि फिजिकली आपका बच्चा बहुत अच्छा था और ऑनलाइन में थोड़ा पीछे पड़ गया है, तो इन लोगों से मैं मैक्सिमम इंटरेक्शन करूंगी. जब मैं इंटरेक्शन करूंगी, उनसे बात करूंगी, तो मुझे ऐसा पता चलेगा कि मेरे साथ तो उनको मेरे से भी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है. तो मतलब जैसा मेरा बेटा थोड़ा आंसर दे रहा है, बाकी का तो ना बोलता है कि लेक्चर को ही बैठना नहीं. क्यों? क्योंकि टीचर क्या पढ़ा रही है ऑनलाइन मुझे बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रहा है, तो उसके पीछे क्या है. तो हर एक माँ का मेरे से ज्यादा या मेरे से कम इश्यूज रहेंगे. तो हु इज गोइंग टू गिव मी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू टॉपिक? तो इसके लिए मुझे ऑडियंस चाहिए. ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपको ऑडियंस ही मिलेगी, आप खुद भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं इफ यू आर हैविंग दैट मच नॉलेज. Who might publish information about it? Who is affected by your topic? So now who will provide? तो इसमें ऑडियंस दे सकती हैं. आपको दूसरे रिसर्च पेपर वाले उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि उनका रिसर्च पेपर में ऐसा था और उनसे मैं अभी ये एक्सट्रैक्ट करके मैं ये आपको बता रहा हूँ. लाइक दिस वन, do you know of organization or institution affiliated with the topic?
Okay, so this is what the question you are going to ask yourself, who is going to provide the information related to the topic. बुक्स हो सकते हैं, सोशल मीडिया हो सकता है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, ऑडियंस हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती हैं, एनीवन ओके। सपोज आपने जूनियर कॉलेज के 11th-12th के स्टूडेंट पे कोई रिसर्च कर रहे हैं, तो जूनियर कॉलेजेस विल बी योर ऑडियंस और प्रोवाइडर्स हु इज गोइंग टू प्रोवाइड यू द इंफॉर्मेशन. Now next one is what are the major questions for the topic. कि ये जो मैंने टॉपिक सिलेक्ट किया है इसके लिए मैं ना मेरे क्या क्वेश्चंस, मेरे क्या इश्यूज हैं जिसपे मैं कुछ रिसर्च लिख सकता हूँ. इज देयर अ डिबेट अबाउट द टॉपिक, आर देयर अ रेंज ऑफ इश्यूज और व्यू पॉइंट. मतलब आपने जस्ट उसको ऑब्जर्व किया है और फिर आप रिसर्च कर रहे हो, या फिर आप उनके इश्यूज को डिस्कस कर रहे हो कि जैसे सोशल मीडिया बच्चों पे क्या इम्पैक्ट कर रहा है, वो डेंजरस है, ये है वो है. तो आप उसकी रेंज डिसाइड करते हो. जैसे यू आर फिलिंग सम फीडबैक फॉर्म्स दैट एम एग्री, डिसएग्री, न्यूट्रल, है ना, ये ऑप्शंस होते हैं. तो आप एक रेंज डिफाइन करते हो उस क्वेश्चन से रिलेटेड. सो देयर यू हैव टू ask yourself कि what kind of major questions will be in the given topic. वेयर इज योर टॉपिक इम्पोर्टेंट, मतलब आपका टॉपिक कहाँ तक इम्पोर्टेंट रह सकता है, लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल, एंड इट इज ऑन यू. बिकॉज व्हेन जितने लोगों ने पीएचडी किए हैं तो उनके मैंने थीसिस में देखे हैं, दे आर सिलेक्टिंग सम रीजन्स लाइक समवन फाइनेंशियल क्राइसिस है तो दे आर सिलेक्टिंग द रीजन्स लाइक संगमनेर, नासिक, सिन्नर. तो उन्होंने एक रीजन लिया. कोई कोई करता है इंडिया और चाइना कंट्रीज को लेकर करता है. सो ऑन स्टेट वाइज महाराष्ट्र एंड गोवा, ऐसे रीजन वाइज भी हो सकता है. तो अभी आपको अगर सपोज अभी मुझे मेरे बेटे के बारे में करना है तो मैं बस स्कूल्स लूंगी. कौन से स्कूल्स लूंगी? जो जिनका आईसीएससी बोर्ड है. तो ऐसे एसएससी भी है, सीबीएसई है, मैं उनको नहीं करूंगी. तो वेयर माय टॉपिक इज इम्पोर्टेंट टू दी रिलेटेड टू दी ओनली क्लास, तो मैं क्लास से रिलेटेड ही लूंगी, या आईसीएससी बोर्ड के बच्चों के लिए लूंगी, या फिर मैं आईसीएससी के ओनली 4th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए लूंगी. क्यों? क्योंकि मेरा इश्यू 4th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट से रिलेटेड है. So that is what where. And when is or was your topic important? When was your topic was important? Is it a current event or a historical issue? मतलब आपको डिफाइन करना पड़ेगा जिससे रिलेटेड आपका इशू है वो अभी करंटली चल रहा है या पास्ट में हुआ है उससे रिलेटेड. देन यू आर गोइंग टू कंपैरिजन कि पास्ट में ऐसा होता था और फिर अभी मेरा बच्चा बिल्कुल नहीं कर रहा है, तो मैं दोनों का कंपैरिजन भी कर सकती हूँ. एंड डू यू वांट टू कंपेयर योर टॉपिक बाय द टाइम पीरियड? यस. 2 साल पहले मेरा बेटा फिजिकली था तो उसको अच्छा सर्टिफिकेट मिल रहा है, स्टूडेंट फैकल्टीज और टीचर्स अप्रिशिएट कर रही है. और उसको अभी 2 साल में अभी ऑनलाइन चल रहा है तो वो इतना यूज टू नहीं हुआ है ऑनलाइन से, तो उसको वो पसंद नहीं आ रहा है. ना आजू बाजू दोस्त है, वो लिख रहा है या नहीं है तो वो टीचर नहीं देख पा रही है. ऐसे ऐसे अलग अलग क्वेश्चंस हो सकते हैं. तो मैं कंपैरिजन भी कर सकती हूँ, या फिर मैं बस पास्ट का टॉपिक पास्ट का ले सकती हूँ, या फिर करंट का इवेंट का ले सकती हूँ. गेटिंग एनी क्वेश्चंस टिल दिस टाइम? No, ma'am. ओके. सो नाउ टॉपिक जैसे है किस पे कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल इफ फ्रॉम यू ऑल, अगर कोई सोच रहा है कि मुझे जो टॉपिक है वो रिलेटेड टू कंप्यूटर ही लेना है, तो सम टॉपिक्स मेजर मेजर टॉपिक, हाँ, उसमें सब थिंग्स बहुत सारे सेंटेंस में आपको एक मेरा खुद का रिसर्च पेपर जो मैंने अभी तक पब्लिश नहीं किया है, बट ऑफ कोर्स आई विल गिव यू सम हिंट कि आपको पेपर कैसे लिखना है. ओके. सो नाउ टॉपिक रिलेटेड टू कंप्यूटर, सो यू कैन, अगर आपके दिमाग में हो तो वो आप रहने दो, बट जिनको नहीं है और दे उनको रिसर्च करने की बहुत इच्छा है तो कैसे शुरुआत करनी है, टॉपिक कैसे सिलेक्ट करना है नहीं पता, तो उनके लिए है कि यू कैन गो विथ आईओटी, बिग डेटा, क्लाउड कंप्यूटिंग, मशीन लर्निंग, डेटा माइनिंग, एआई दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इमेज प्रोसेसिंग, ग्राफिक्स से रिलेटेड, बायो इंफॉर्मेटिक्स, quantum computing, cyber security, e-business, ethics and future of 5G wireless system. ऐसे बस मैंने कुछ ढूंढ के निकाले हैं. इससे आपको चाहिए तो ये पीपीटी भी मैं आपको सबको सेंड करूंगी, सो डोंट वरी विद रिलेटेड टू इट.
एंड उसके बारे में मैं इंफॉर्मेशन दूंगी आपको क्या करना है. Now the topic on which you can do the projects. So for example, जिनको प्रोजेक्ट बनाना है SRPS में भी लेना है तो डोंट वरी, आपको पूरा फुल फ्लेज प्रोजेक्ट अभी सबमिट नहीं करना है. एटलीस्ट यू कैन स्टार्ट योर वर्क ओके ओवर देयर. और आपका प्रोजेक्ट या आपका रिसर्च बहुत अच्छे से हो जाता है ना, तो आप बाहर इंटरनेशनल लेवल पे भी उसको पब्लिश कर सकते हैं. सो डोंट पुट इट इन माइंड कि भाई मैं ये कॉलेज में दे दूंगा तो मैं बाहर कैसे करूंगा पब्लिश उसको और कोई चुरा लेगा. कोई चुराने वाला नहीं है, वो आपके ही नाम पे रहेगा. ओके. सो नाउ some points I have मुझे लगता है कि जिसपे जिनको SRPS में पार्टिसिपेट करना है वो ये टॉपिक भी ले सकते हैं. जैसे मैंने क्या एक प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट से रिलेटेड टॉपिक है, इस पे रिसर्च ही होगा एक्चुअली. तो क्या है, कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंग्लिश लैंग्वेज इन जूनियर सेकेंडरी स्कूल. तो इसमें ये बस मैंने टॉपिक निकाले हैं, इसमें क्या करना है, इसमें कैसे करना है, ये जो भी वर्क करेगा उसको बहुत इंफॉर्मेशन गैदर्ड करके उसमें इंफॉर्मेशन लिखनी होगी. Second topic I have selected a regression analysis on the hours spent on internet and time spent to study on academic performance of the students. So it is related to students and the amount of time spent by junior college student on social media. तो अभी आपका पहली बात है कि अमाउंट ऑफ टाइम, क्योंकि आप देख सकते हो कि सब लोग अभी घर पे, तो इंटरनेट का जो यूज पहले था उससे ज्यादा, मतलब मैं बोलूँ 100% या 10% इंक्रीज हो गया, क्योंकि लोग घर पे हैं, कोई मूवी देख रहा है, कोई म्यूजिक सुन रहा है, कोई यूट्यूब पे अलग अलग वीडियोस देख रहा है, कोई गूगल पे कोई सर्च कर रहा है, कोई पढ़ाई के लिए कुछ बहुत सारा ढूंढ रहा है, कोई ब्लॉग लिख रहा है, कोई ब्लॉग कर रहा है, लाइक दिस वन. तो इंटरनेट का सोशल मीडिया भी बढ़ गया है, तो इस यूज बढ़ गया है. तो इसमें आप लिख सकते हो, आप मैंने जैसे कंपैरिजन बोला, आप वैसे कंपैरिजन कर सकते हो, या 12 का रिजल्ट लास्ट ईयर से इस ईयर बहुत अच्छा क्यों आया, आप अलग सोशल मीडिया का नहीं यहाँ पे, पर आप उसके हिसाब से सोच सकते हो कि 12 की एग्जाम हुई नहीं तो इस बार का रिजल्ट क्या है, और लास्ट ईयर एग्जाम हुई थी तो उस वक्त का रिजल्ट क्या है. तो दोनों में एनालिसिस करके आप उसको प्रेजेंट कर सकते हो. Fourth topic is what that is the effect of taking the back seat in the class or the front seat in the class on success rate of student. क्या बैक सीट पे जो बच्चे बैठते हैं और जो फ्रंट सीट पे बैठते हैं, तो ऐसा है कि मैक्सिमम फ्रंट सीट पे बैठने वाले बच्चे फर्स्ट क्लास विद डिस्टिंक्शन आते हैं और बैक बेंचर जो है वो फेल हो जाते हैं या उनका परसेंटेज कम है. तो वो एनालिसिस आपको ढूंढना है, लाइक दिस वन. What makes a student more likely to choose a subject? लाइकिंग ऑफ द सब्जेक्ट और द इंडस्ट्री स्टेबिलिटी. ओके, तो ये जस्ट टॉपिक है, इससे रिलेटेड आप अलग टॉपिक ले सकते हो. दूसरा और टॉपिक कौन से ले सकते हैं, लाइक टेक्नोलॉजी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन सोशल रिलेशनशिप, दैट हाउ हैज सोशल मीडिया चेंज्ड आवर रिलेशनशिप विद द अदर पीपल. तो ये बस आपका क्या रहेगा, टॉपिक रहेगा. ये topics will be in the format of questions also, in the format of regional. मैंने जैसे बोला कि आप है ना सिटी टू सिटी कर सकते हैं, या फिर 4th and 5th स्टैंडर्ड के बच्चे, 11th and 12th स्टैंडर्ड के बच्चे, ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन एंड अंडर ग्रेजुएशन के अलग अलग बच्चे, ऐसे करके भी, मतलब आप जो भी टॉपिक सिलेक्ट करोगे तो वहां पे कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है कि आपका टॉपिक ऐसे ही होना चाहिए. बट यस, आपके टॉपिक इतना प्रिस्क्राइब होना चाहिए कि जो भी टॉपिक पढ़ेगा तो उसके दिमाग में ये आएगा कि उसने पेपर में क्या लिखा होगा. ओके, सो इट शुड नॉट बी कि मेरा पेपर का टॉपिक जो है ना 2 वर्ड में होना चाहिए. नो, आप 3 से 4 लाइन में भी आपका टॉपिक डिस्क्राइब कर सकते हो. नो वेयर इट इज गिवन और नॉट, नो वेयर द some limit is given कि you have to write your paper only topic for the paper will be only 3-4 words and all. No, आपका टॉपिक आप 3 से 4 लाइन का लिख सकते हो, ताकि आपको बताना है कि मैंने मेरे रिसर्च में क्या किया है. तो इट शुड बी दैट टॉपिक शुड बी हार्ट ऑफ योर पेपर. जो आप कोई भी पढ़े ना तो समझ जाए इसमें क्या लिखा हुआ है. तो ये जस्ट इट्स लाइक अ क्वेश्चन, आप इस थीम को अलग वर्डिंग्स में चेंज करके भी लिख सकते हो.
The importance of monitoring and limiting our social media intake. Addiction to technology should be global concern. How is social media negatively influencing the workplaces? Has social media damaged the current generation social skill? How should people effectively manage their social media profile? बहुत लोग हैं कि जो effectively उसको manage करते हैं. कुछ लोग हैं जैसे सिंपल होते हैं जो उनका पर्सनल प्रोफाइल बस फोटो डालो, कितने लाइक आए, क्या आए वो देखते हैं. कोई बस व्लॉग के लिए करता, कितने शेयरिंग हुए, कितने लाइक्स आए तो इनकम शुरू हो रहा है. कोई है जो सोशल वर्क के लिए यूज करता है कि बहुत से मैंने भी देखा है, डोनेशन है, ये है, वो है. या फिर कोई है कि जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है तो उसी पेज पे आप देखोगे. कोई कोई बहुत इफेक्टिवली उनके उनका सोशल मीडिया का जो प्रोफाइल है वो हैंडल करते हैं. लाइक दिस, शुड देयर बी मोर रेगुलेशन मेड फॉर सोशल मीडिया प्राइवेसी? अभी आजकल तो एक फंडा ही हो गया है कि लेटर लिखा तो मरने से पहले कोई चुरा लेता है, या फिर ससुराल वाले या ये वाले वो दोस्त वाले वो कहाँ कहाँ पे ना पुलिस वाले पे दबाव होता है और फिर वो केस निकल जाते हैं. तो आजकल लोगों ने क्या कर दिया है, फेसबुक लाइव आते हैं और सुसाइड करने से पहले 4-5 लाइन बोल देते हैं, मर जाते हैं, हो गया खत्म. मतलब क्या है ये, सोशल मीडिया की प्राइवेसी खुद है ही नहीं डायरेक्टली. जब मैं बता रहे हैं कि अभी मैं मरने जा रहा हूँ, मरने जा रही हूँ और मेरा दोषी कौन रहेगा, व्हाट इज दिस? पहले तो ऐसा नहीं था. तो ये ऐसी चीजें हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं? पहले लेटर लिखकर, सुसाइड नोट लिखकर मरते थे, अब डायरेक्ट सोशल मीडिया पे वीडियो बना के मर रहे हैं. व्हाई दिस इज हैपनिंग? एकदम सिंपल सिंपल चीजें हैं, बट इसमें भी आप रिसर्च कर सकते हो, इसमें भी बोल सकते हो कि व्हाई दिस इज हैपनिंग. ओके, और ये कौन से इसमें हुआ, फ्रस्ट्रेशन में हुआ, कोविड की वजह से वो बाहर निकल नहीं पाए, तो जब लॉकडाउन था तब ये मैक्सिमम हुआ, और जैसे अनलॉक हुआ तो ये कम हो गया. तो क्यों? तो अकेलापन है तो उसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन हुआ, डिप्रेशन में आ गए, और बिकॉज ऑफ दिस सुसाइड केसेस लॉकडाउन में ज्यादा हुए, अनलॉक हुआ तो कम हुआ. दैट इज ऑल्सो एनालिसिस. ओके, नेक्स्ट वन, सोशल मीडिया फिर से वही है. उसके बाद में एक पेपर आपको, आपके टॉपिक मेरे साथ सबके सामने नहीं बोलना है, कोई बात नहीं है, आप पर्सनली मुझे बोल सकते हो टॉपिक और उसका सब थीम आपको बोलना है. टॉपिक के कैसे होने चाहिए मैंने आपको ये बताया, प्रोजेक्ट कैसे होने चाहिए ये बताया है. ये लाइक प्रोजेक्ट ही है, तो आप देख सकते हो कितना बड़ा पूरा लाइन है जो वो आपके रिसर्च को दिखा रहा है कि कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंग्लिश लैंग्वेज इन जूनियर सेकेंडरी स्कूल. तो ये टॉपिक ही बता रहा है कि इसमें कहीं पे कंपैरेटिव कंपैरिजन किया है कंप्यूटर और इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड, और किसके लिए किया है, तो जूनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों के लिए क्या है, लाइक दिस वन. तो आपका पेपर वहीं पे सारे क्वेश्चन के आंसर दे देगा. ओके, तो लाइक दिस यू हैव टू. अभी आपको अगर देखना है तो मुझे मैं आपको एक पेपर दिखा रही हूँ जो मैंने अभी तक पब्लिश नहीं किया है, जिसमें राइटिंग मोड पे हूँ. ओके, तो पब्लिश करने का अभी तक मैंने सोचा नहीं है, बट ओके. तो इसमें जैसे फॉर एग्जांपल द अवेयरनेस, अभी मेरे टॉपिक का नाम देखिए क्या है, द अवेयरनेस ऑफ इथिक्स एंड रेगुलेशन इन साइबर लॉ बाय यंग जनरेशन व्हाइल कम्युनिकेटिंग ऑन सोशल मीडिया. जब बच्चे कोई भी हैं सोशल मीडिया पे वर्क कर रहे हैं, तो वहां पे क्या उनको पता है कि कौन से इथिक्स रेगुलेशंस साइबर लॉ ने दिया है कि